Carbon catenation and tetravalency property results in large number of organic compound. To study well of these compound, it is necessary to classify them. Here the classification of organic compound. Organic compound can be classified into open chain and closed chain. Open chain means acyclic compound, there is no cycle or closed ring. Closed chain or cyclic compound, there is a closed ring in structure. Open chain or acyclic compound can be further classified into straight chain and branch chain. In straight chain, there is the chain of carbon. In branch chain, there is a branch of carbon or group attached to the main chain. In case of cyclic organic compound, it may be two types: aromatic or non-aromatic. Aromatic may be under classified into homocyclic and other classification is heterocyclic. Means cyclic compound further classified into homocyclic and heterocyclic. In homocyclic, there is only carbon compound in cycle or carbon atom in cycle, whereas in heterocyclic there is one or more different element than carbon. For example, in furan there is oxygen, pyridine there is nitrogen, and etc. In case of homocyclic, it may be acyclic, it may be alicyclic or aromatic. Alicyclic means there is closed ring of carbon but no aromaticity, means there is no delocalization of electron. Whereas in case of aromatic, there is delocalization of electron. So these are the classification of organic compound. Here we can see again classification of organic compound. कार्बन की श्रृंखला बनाने की और चतुर संयोजता होने के कारण ढेर सारे इसके यौगिक बनते हैं और इन यौगिकों को ठीक ढंग से पढ़ने के लिए उनका वर्गीकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम वर्गीकरण करते हैं। कार्बनिक रसायन को दो में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओपन चेन कंपाउंड मतलब श्रृंखलादार, उसमें कोई भी बंध नहीं होंगे, क्लोज साइकिल जैसा नहीं होगा, चक्र जैसा उसमें कोई भी संरचना नहीं होगी। और क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड रहेंगे, ऐसे यौगिक रहेंगे कार्बनिक रसायन के जिसमें चक्र होंगे। ओपन चेन कंपाउंड और अचक्रीय कार्बनिक रसायन को दो भागों में बांटा जा सकता है। स्ट्रेट चेन जो श्रृंखला रहेगी, ब्रांच चेन इसमें श्रृंखला के साथ उसमें शाखाएं भी रहेंगी। ये एक उदाहरण है स्ट्रेट चेन का और ये शाखा का। क्लोज चेन और चक्रीय कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक मतलब इसमें जो चक्र बनेंगे वो सिर्फ कार्बन के बनेंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ दूसरे तत्व भी रहेंगे, जैसे ऑक्सीजन फ्यूरन में पाया जाता है, नाइट्रोजन पिरिडीन में पाया जाता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक वह यौगिक होते हैं जिसमें इस तरह से चक्र जैसे संरचना होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, मतलब एरोमेटिक कंडीशन नहीं होती है। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। जबकि
एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक होते हैं, जैसे ये बेंजीन रिंग में एरोमेटिक होते हैं, ये साइक्लोपेंटेन है और एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। Because of the property of catenation and tetravalency, carbon forms a large number of organic compounds that can be classified into open chain and closed chain compound, open chain or acyclic, closed chain or cyclic. Open chain further classified into straight and branch chain, and cyclic compound are further classified into homocyclic and heterocyclic. Homocyclic further classified into alicyclic and aromatic. Here first we see the aliphatic or acyclic organic compounds. Acyclic organic compounds can be defined as the linking of a carbon atom to another to form a straight, open or branch chain. These may be saturated or unsaturated. Saturated means there is no double bond or triple bond in between the carbon atoms. Unsaturated means there must be double or triple bond between the carbon atom. Here we can say at acyclic or open chain compounds, organic compound in which all the carbon atoms are linked to one another to form open chain or straight or branch chain, called acyclic open chain compound. These may be saturated or unsaturated. Here is the example: all the carbon are linked together with each other, but there is no double bond. So this is straight open chain saturated, no carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. Next, this is the open chain but branched open chain saturated means no carbon carbon double bond or triple bond. Here carbon have double bond and here the carbon have triple bond, so it's a straight open chain unsaturated. There is carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond. Here there is double bond, triple bond and branched carbon, so it is branched open chain unsaturated and there is carbon carbon double bond or triple bond. So this is the classification of acyclic organic compound. Example of acyclic open chain organic compounds or hydrocarbons are alkene, general formula CnH2n plus 2, alkene, general formula CnH2n, and alkynes CnH2n minus 2. In case of alkanes, examples are methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane, and more are there. In case of alkenes, these are unsaturated, means there is either double bond or triple bond. In case of alkene, there is at least one double bond, and in case of alkyne, there is at least one triple bond between carbon atom. Here we can see with the example. So it's a aliphatic or open chain compound. Example, alkene with general formula CnH2n plus 2. Alkenes, general formula CnH2n. Alkynes, general formula CnH2n minus 2. Here are some examples of carbon atom number 10. Acyclic hydrocarbons may be saturated and unsaturated. Here saturated one and rest these are unsaturated. Saturated, first methane. Meth is the prefix and ane is the suffix.
एल्केन, इन एल्कीन, आइन एल्काइन. Rest are same. For example, eth, eth, prop, prop. The first is saturated methane, CH4, ethane, C2H6, propane, C3H8, butane, C4H10, pentene, C5H12, hexene, C6H14, heptene, 7 carbon atoms, H16, octene, 8 carbon atom, H18, nonane, C9, H20, decane, C10H22, undecane, C11H22, 24. Then dodecane, tridecane, tetradecane, pentadecane, hexadecane, heptadecane, nonadecane. Then these are the example of saturated hydrocarbon. This is unsaturated. In case of unsaturated, at least there must be one carbon-carbon double bond. So here the starting material is ethene. At least 2 carbon is required between 2 carbon required for carbon-carbon double bond. So first chemical of this series is ethene. At least 2 carbon is required here. C2H4, propene, C3H6, butene, C4H8, pentene, C5H10, hexene, C6H12, heptene, C7H14, octene, C8H16, nonene, C9H18, decene, C10H20, undecene, C11H22, dodecene, tridecene, tetradecene, pentadecene, hexadecene, heptadecene, octadecene, nonadecene. These are the alkene series. Next, alkyne. General formula CnH2n-2. So first, and there must be one carbon-carbon triple bond. There must be one carbon-carbon triple bond. So first example is of 2 carbon atom, ethyne, propyne, butyne, pentyne, hexyne, heptyne, octyne, nonine, decine, undecine, dodecine, tridecine, tetradecine, pentadecine, hexadecine, heptadecine, octadecine, nonadecine. These are the hydrocarbons of at least 3 carbon atom, alkyne. So here hydrocarbon series of alkanes, alkenes, alkynes. Saturated, unsaturated, unsaturated. No double bond, at least 1, 2 double bond, at least 1, 3 double bond between the carbon atom. So these are the acyclic hydrocarbons. एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन उन कार्बनिक रासायनिक पदार्थों को कहेंगे जिसमें ओपन चेन होते हैं, मतलब कार्बन एक दूसरे से जुड़कर श्रृंखला बनाती हैं, ये ओपन चेन बनाते हैं. उदाहरण के लिए यहाँ पे देखते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ये सैचुरेटेड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. इसकी सीरीज है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन. ये एल्कीन की सीरीज है जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कम से कम सीरीज में एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए. एक से ज़्यादा भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकते हैं. इस सीरीज़ को एल्कीन सीरीज़ कहते हैं. और इस एल्कीन सीरीज़ में पहला जो इसमें तत्व है यौगिक है वो है इथीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक कम से कम डबल बॉन्ड रहने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो रहना ही चाहिए, इसलिए इसकी शुरुआत इथीन से होती है.
तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, अंडेकिन। उसी तरह से एल्काइन सीरीज में भी कम से कम 2 कार्बन की ज़रूरत होगी, तभी उनके बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसकी भी शुरुआत जो है पहले 2 कार्बन एटम से होती है, और ये इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेसाइन एंड अंडेसाइन, ये सब हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के स्ट्रेट ओपन चेन। इनके ब्रांच्ड चेन भी होंगे। ब्रांच चेन में देखेंगे तो फिर जो है ब्रांच चेन में इसमें ब्रांच नहीं होगा, इसमें ब्रांच नहीं होगा और इसमें ब्रांच नहीं होगा। इसके बाद वाले सभी में ब्रांचेस हो जाएंगे, जिसमें ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन या फिर मिथाइल प्रोपेन, इसमें आइसोपेंटेन या फिर मिथाइल ब्यूटेन, इसमें एनहेक्सेन है ये, तो इसमें आइसोहेक्सेन या फिर मिथाइल पेंटेन, इस पे एनहेप्टेन, इसका अगर ब्रांच चेन देखेंगे तो मिथाइल हेप्टेन। उसके अलावा और भी इसमें बन सकते हैं, इथाइल, इस केस में इथाइल पेंटेन भी बन सकते हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के। इन सभी को याद करना बहुत ही आसान है। इसमें जो प्रीफिक्स और सुफिक्स है उसको देखा जाता है। प्रीफिक्स मतलब नाम में जो पहले जुड़ता है, सुफिक्स नाम में जो बाद में जुड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मीथेन में, ये मीथ एन, मीथेन, मीथ, पहले कार्बन को मीथ, दूसरे को ईथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, पांचवे को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक। इस तरह से हम देखें तो सभी में ये सेम रहता है, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक। सुफिक्स में देखिए जो बाद में जुड़ता है, सैचुरेटेड एल्कीन है तो लास्ट का है एन, 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 ये पूरा एन जुड़ेगा, तो इसलिए ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। उसी तरह से एल्कीन सीरीज में भी है ईथ, ईन, ईथीन, प्रोप, ईन, प्रोपीन, ब्यूट, ईन, ब्यूटीन, पेंट, ईन, पेंटीन, हेक्स, ईन, हेक्सीन, हेप्ट, ईन, हेप्टीन, ऑक्ट, ईन, ऑक्टीन, नोन, ईन, नोनीन, डेक, ईन, डेकिन, अनडेक, ईन, अनडेकिन, डोडेकिन, ट्राइडेकिन, टेट्राडेकिन, पेंटाडेकिन, हेप्टाडेकिन, हेक्साडेकिन, ऑक्टाडेकिन, डेकिन बोले चाहे डेसिन में नहीं, ऑक्टाडेसिन, नोनाडेसिन। उसी तरह से है ये इथ आइन, प्रोप आइन, ब्यूट आइन, पेंट आइन। 1 से लेके 20, 30 जितना भी है 100 तक इनके अगर नाम याद कर लेंगे तो बाकी उसके बाद का याद कर आसान रहेगा। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, उसी तरह से इनके नोमेनक्लेचर याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। Here are some examples of acyclic haloalkanes. Acyclic haloalkanes means saturated acyclic haloalkanes that includes chloromethane. General formula RX. X is either fluorine, chlorine, bromine or iodine. हेलोएल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो RX है। यहाँ R जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, X हैलाइड्स हैं। ये हैलाइड्स
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी हो सकता है या सब हो सकते हैं। तो यहाँ सैचुरेटेड एसाइक्लिक हैलोएल्केन्स में पहला क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन मिथाइल पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो क्लोरोमीथेन, इसको मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ब्रोमोमीथेन ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। फ्लोरोमीथेन में फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। आइडोमीथेन में आयोडीन। उसी तरह से जो है ये अनसैचुरेटेड हैलो एल्कीन्स हैं। अनसैचुरेटेड हैलो एल्कीन्स में मिनिमम कार्बन कंपाउंड जो है वो कार्बन एटम 2 रहेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्लोरोईथीन, इधर ये इथाइल और ये क्लोरीन ग्रुप, ये इथिनाइल ग्रुप है, इथिनाइल ग्रुप। ये ब्रोमोईथीन ब्रोमीन ग्रुप, फ्लोरोईथीन फ्लोरीन, आइडोईथीन आयोडीन। उसी तरह से अनसैचुरेटेड हेलो एल्कीन्स जिसमें हेलो एल्काइंस एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। एग्जाम्पल क्लोरोइथाइन C2H1Cl, फ्लोरोइथाइन C2H1F, ब्रोमोइथाइन C2H1Br, आइडोइथाइन C2H1I। तो जिस तरह से ये हेलो एल्केन्स क्लोरोमीथेन है, इसकी पूरी सीरीज 20 तक हो जाएगी। क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोऑक्टेन, क्लोरोनोनेन, क्लोरोडेकेन, क्लोरोअनडेकेन, क्लोरोडोडेकेन, क्लोरोट्राइडेकेन, क्लोरोटेट्राडेकेन, क्लोरोपेंटाडेकेन, क्लोरोहेप्टाडेकेन, क्लोरोहेक्साडेकेन, ये सब हो सकते हैं। अब इसी में ही जैसे ये ब्रोमोमीथेन है तो ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेप्टेन, ब्रोमोऑक्टेन, ब्रोमोनोनेन, ब्रोमोडेकेन। उसी तरह से फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोहेक्सेन। उसी तरह से आइडोइथेन, आइडोमीथेन, आइडोब्यूटेन, आइडोप्रोपेन, आइडोपेंटेन। उसी तरह से अनसैचुरेटेड में क्लोरोईथीन, नेक्स्ट क्लोरोप्रोपीन, क्लोरोब्यूटीन, क्लोरोपेंटीन, क्लोरोहेप्टीन, क्लोरोहेक्सीन, क्लोरोऑक्टीन। उसी तरह से ब्रोमोईथीन तो ब्रोमोप्रोपीन, ब्रोमोब्यूटीन, ब्रोमोपेंटीन, ब्रोमोहेक्सीन, ब्रोमोहेप्टीन, ब्रोमोऑक्टीन। उसी तरह से फ्लोरोईथीन, फ्लोरोप्रोपीन, फ्लोरोब्यूटीन, फ्लोरोपेंटीन, फ्लोरोहेक्सीन, फ्लोरोहेप्टीन। उसी तरह से ये अनसैचुरेटेड में क्लोरोइथाइन, क्लोरोप्रोपाइन, क्लोरोब्यूटाइन, क्लोरोपेंटाइन, क्लोरोहेक्साइन, क्लोरोहेप्टाइन, क्लोरोऑक्टाइन, क्लोरोनोनाइन, क्लोरोडेकाइन, क्लोरोअनडेकाइन या फिर क्लोरोअनडेसाइन, क्लोरोडोडेसाइन, क्लोरोट्राइडेसाइन, क्लोरोटेट्राडेसाइन, फ्लोरोइथाइन, फ्लोरोप्रोपाइन, फ्लोरोब्यूटाइन, फ्लोरोपेंटाइन, फ्लोरोहेक्साइन। ब्रोमोइथाइन का ब्रोमोप्रोपाइन, ब्रोमोब्यूटाइन, ब्रोमोपेंटाइन, ब्रोमोहेक्साइन, ब्रोमोहेप्टाइन। आइडोइथाइन का आइडोप्रोपाइन, आइडोइथाइन, आइड्रोब्यूटाइन, आइडोपेंटाइन, आइडोहेक्साइन, आइडोहेप्टाइन। इस तरह से बहुत सीरीज बन जाएंगी इसकी। ये सरल तरीका इनको याद करने का को आसानी से याद किया जा सकता है। Next, acyclic open chain compounds are acyclic alcohols. Acyclic alcohols means with alkane, alkene, alkyne there is an functional group, hydroxyl group. Here are the some examples. Saturated alcohols
means there is no any double bond or triple bond in carbon chain. Example, methanol. Here methane and all, hydrocarbon and suffix all. Same ethanol, CH3OH, C2H5OH, propanol, C3H7OH, butanol, C4H9OH, pentanol, C5H11OH, hexanol, C6H13OH, heptanol, C7H15OH, octanol, C8H17OH, nonanol, C9H19OH, decanol, C10H21OH. Similarly, undecanol, didecanol, tridecanol, tetradecanol, pentadecanol, hexadecanol, heptadecanol, octadecanol, nonadecanols. These are the 19 alcohols of hydrocarbon. Next, unsaturated alcohols means there must be a single carbon-carbon double bond or triple carbon-carbon double bond. Triple bond. Carbon-carbon triple bond. Here at least one carbon-carbon double bond means in chain structure there must be at least one double bond between two carbon atoms. First, ethanol, C2H3OH, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol, nonenol, decanol, undecanol, didecanol, tridecanol, tetradecanol, pentadecanol, hexadecanol, heptadecanol, octadecanol, nonadecanol. Next, at least one carbon-carbon triple bond unsaturated alcohols में ethanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol, nonenol, decanol, undecanol, didecanol, tridecanol, tetradecanol, pentadecanol, hexadecanol, heptadecanol, octadecanol or nonadecanols. These are the unsaturated alcohols or acyclic hydrocarbons. ये सब जो है उदाहरण हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और एसाइक्लिक अल्कोहल्स में. इसके अंदर आते हैं ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और these are the examples of acyclic hydrocarbons में अल्कोहल्स हैं. Among acyclic open chain carbon compounds, here the next example is acyclic aldehydes. Acyclic aldehydes also contains saturated and unsaturated. Here the example. Saturated, first methanol HCHO, ethanol CH3CHO, propanol C2H5CHO, butanol C3H7CHO, pentanol C4H9CHO. इस तरह से हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल, अनडेकेनल और डोडेकेनल, ट्राइडेकेनल, टेट्राडेकेनल, पेंटाडेकेनल, hexadecanal, heptadecanal, octadecanal. Here we see the difference between first and second hydrocarbon series. Here HCHO, CH3CHO, C2H5. From here start. Difference 3 hydrogen, 5 hydrogen, 7 hydrogen, 9 hydrogen, 11 hydrogen. जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ रही है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो उसी तरह से सब में दो दो जोड़ दिए, 7 to 9 to 11 to 13 to 15 to 17 19 21. तो नेक्स्ट सीरीज का जो केमिकल है वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से डिफर कर रहा है. बड़े आसानी से इसको जो है
समझा जा सकता है और बनाया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे है अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक एल्डिहाइड्स। इसमें सबसे पहले एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब चेन में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट प्रोपिनल C3H4O, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम जो है दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये है प्रोपिनल, प्रोपिनल को प्रोपिनल को ऐसे भी लिखा जा सकता है इसमें, और ब्यूटेनल को ब्यूटेनल को CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें 2 ब्यूटेनल होगा, 2 ब्यूटेनल, 2 पेंटेनल C5HA2, 2 हेक्सेनल C6H10O, 2 हेप्टेनल C7H12O। इन सभी फार्मूला को उस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 ऑक्टेनल C8H14O, 2 नॉनिनल C9H16O, 2 डेसिनल C10H10O, 2 अनडेसिनल C11H20O, 2 डोडेसिनल C12H20O, 2 ट्राइडेसिनल C13H24O, 2 टेट्राडेसिनल C14H26O। इस तरह से सीरीज में और आगे बढ़ाते जाएंगे। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क होगा उसमें। आगे देखते हैं, ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स में कम से कम कार्बन और कार्बन के बीच में 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब पूरे सीरीज में कम से कम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब पूरे सीरीज में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। में प्रोपाइनल C2H2O, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है और एक हाइड्रोजन हटा के, और ये हो गया प्रोपाइनल। नेक्स्ट ब्यूटाइनल के लिए एक हाइड्रोजन इधर से इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटाइनल। उसके बाद यहाँ CH3 CH2 CH3 CH2 सब जो है सीरीज बढ़ते जाएंगे। तो ये 2 ब्यूटाइनल C4H4, इसमें 4 हाइड्रोजन है ब्यूटाइनल में, तो 3 and 1 4। प्रोपाइनल में 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 यहाँ। इस तरह से ये सीरीज बनाया जा सकता है और समझा जा सकता है। Next example of alicyclic open chain compound is derivatives of ketone. Also occur in unsaturated and saturated. Examples of unsaturated are here saturated ketones में propanol structure CH3COCH3. So minimum 3 carbon compound are required for a ketone structure. Butanone C2H5COCH3, pentanone C3H7COCH3. Here this will remain same, only carbon chain changes here. सैचुरेटेड कीटोन्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए इधर सेम डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन सिर्फ सेकंड पोजीशन पे ऑन है, तो ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आइसोमर्स होंगे, उस तरह से ढेर सारे कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने एक सिंपल उदाहरण दिया हुआ है कि एक साइड एक मीथेन है, मिनिमम इधर मिथाइल ग्रुप चाहिए ही चाहिए कम से कम, क्योंकि इधर अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये
एल्डिहाइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे CH3 कम से कम चाहिए कीटोन होने के लिए, और इधर मिनिमम CH3। सो कीटोन का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है यही रहेगा, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट ब्यूटेनॉन, पेंटानॉन, हेक्सानॉन। इसी तरह से सीरीज पूरी हो सकती है, हेक्सानॉन, हेप्टानॉन, ऑक्टानॉन, नोनानॉन, डेकानॉन, अनडेकानॉन और डोडेकानॉन। तो इसमें जो है सिर्फ इधर के चेंज कर रहे हैं, इधर भी चेंज कर सकते हैं, तो नाम थोड़ा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट था अनसैचुरेटेड कीटोन। अनसैचुरेटेड कीटोन्स मतलब जो ओपन चेन है उसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल होगा वो ब्यूटेनॉन का होगा। ब्यूटेनॉन कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि 1 2 3 ब्यूट 3 इन 2 ओन, ब्यूट 3 इन 2 ओन, ये हो गया ब्यूटेनॉन। उसी तरह से पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, ये स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ तक तो कम से कम कॉमन रहेगा, इधर चेंज हो सकते हैं। ये डबल बॉन्ड जो थर्ड पोजीशन पे है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ते हैं तो फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे भी हो जाएंगे। और ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इधर सिर्फ मिथाइल है बाकी चेन इधर है, तो ये भी हो सकता है कि इस ऑक्सीजन ग्रुप को यहाँ पे रख दें और डबल बॉन्ड को और इधर कर दें या उस साइड कर दें। इस तरह से जो है स्ट्रक्चर ढेर सारे बन सकते हैं और सबके नाम अलग अलग रहेंगे। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड कीटोन्स में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक होने चाहिए। तो इसमें ब्यूटाइनोन, तो सेम लगभग ऐसा ही रहेगा, इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, एक हाइड्रोजन कम रहेगा, बाकी उसी तरह से रहेंगे। तो पेंटेनोन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, इस तरह से सीरीज पूरे बनाते जाएंगे तो ढेर सारे सीरीज ये कीटोन में बनाए जा सकते हैं। Acyclic open chain compound, next example is carboxylic acid derivative of acyclic open chain compound. First, saturated carboxylic acid and unsaturated carboxylic acid. In saturated carboxylic acid there is no any double bond or triple bond in carbon chain, whereas there is at least one double bond or triple bond in case of unsaturated carboxylic acid. Here is the example. Saturated carboxylic acid, methanoic acid, HCOOH, also known as formic acid. Next, ethanoic acid, CH3COOH, also known as acetic acid or vinegar. Propanoic acid, C2H5OH, butanoic acid, C3H7COOH, pentanoic acid, C4H9COOH, हेक्सानोइक एसिड C5H11COOH, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नोनानोइक एसिड, डेकानोइक एसिड, अनडेकानोइक एसिड, डोडेकोइनिक एसिड, ट्राइडेकानोइक एसिड, टेट्राडेकानोइक एसिड, पेंटाडेकानोइक एसिड, हेक्साडेकानोइक एसिड, हेप्टाडेकानोइक एसिड, ऑक्टाडेकानोइक एसिड, नोनाडेकानोइक एसिड, फिर इकोसिनोइक एसिड. Eicosanoic acid having 20 carbon atom in chain. Next, unsaturated carboxylic acid examples are: first, at least one carbon-carbon double bond in a chain. Means carbon chain must have at least one double bond between two carbon atom in chain. Example: propanoic acid, CH2 double bond CHCOOH, butanoic acid, CH3CH double bond CHCOOH, pentanoic acid, pentanoic acid, C2H5 CH double bond CHCOOH, hexanoic acid, C3H7 CH double bond CHCOOH. Next,
unsaturated hydrocarbon carboxylic acid chain is at least one carbon-carbon triple bond. Example: propanoic acid CH triple bond C COOH, butanoic acid CH3C triple bond C COOH, pentanoic acid C2H5 C triple bond C COOH, hexanoic acid C3H7 C triple bond C COOH, heptanoic acid C4H9 C triple bond C COOH. Next is octanoic acid, nonanoic acid, decanoic acid. These are the example of carboxylic acid derivative of open chain hydrocarbons. Further classification of organic compound. Cyclic compounds. Cyclic compounds are those in which there is one or more ring of carbon atom in molecule. It can be further classified into monocyclic compound. Monocyclic carbon compound are those contain one ring of carbon atom in a molecule. Polycyclic compound are those cyclic compound of carbon that contain one or more ring of carbon atoms in a molecule. Further, homocyclic carbon compounds. Homocyclic carbon compounds are those contain ring or rings of carbon atom only. Heterocyclic carbon compounds. Heterocyclic carbon compounds are those that contain ring one or more heteroatoms like nitrogen, oxygen, sulfur in a molecule are known as heterocyclic compounds. Here can explain in टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बनिक यौगिकों में दूसरा क्लासिफिकेशन है चक्रीय और बंध श्रृंखला यौगिक. इसमें साइक्लिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन रिंग और क्लोज चेन ऑफ एटम्स. चक्रीय यौगिक उन्हें कह सकते हैं जिसमें कम से कम एक रिंग या छल्ला या फिर जो है एटमों का जो परमाणुओं की श्रृंखला होती है उसका एक बंद आकार. इसको फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब एकल चक्रीय यौगिक जिसमें एक चक्र पाए जाते हैं यौगिकों में. तो कंपाउंड्स विथ ओनली वन रिंग ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल नोन एज मोनोसाइक्लिक कंपाउंड. ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ एक चक्र पाए जाते हैं परमाणुओं की तो उन्हें हम एकल चक्र यौगिक कहेंगे. पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स द साइक्लिक कंपाउंड विथ मोर देन वन रिंग ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल नोन एज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड. ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक से ज़्यादा चक्र मिलते हैं एटमों के तो उन्हें हम पॉलीसाइक्लिक या फिर बहुचक्रीय यौगिक कहेंगे. होमोसाइक्लिक कंपाउंड. अब इन चक्रीय यौगिकों को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक मतलब समचक्रीय यौगिक मतलब इसमें जितने भी एटम रहेंगे एक या एक से ज़्यादा रिंग में वो सब एक रहेंगे. जैसे कार्बन का है तो कार्बन ही रहेगा सिर्फ. साइक्लिक कंपाउंड हैविंग मोर और रिंग ऑफ कार्बन एटम ओनली इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स में जो है एक या एक से ज़्यादा रिंग हैं तो वो सिर्फ कार्बन के रहेंगे तो उनको समचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे. दूसरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड कंटेन वन और मोर हेटेरो एटम्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द रिंग और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें एक या एक से ज़्यादा दूसरे एलिमेंट या दूसरे तत्व पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. कार्बन के अलावा अगर ऐसे दूसरे तत्व पाए जाते हैं किसी चक्रीय यौगिक में तो उसको
विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। Cyclic compound can be further divided into or classified into homocyclic and heterocyclic. Homocyclic are those cyclic compound that contain only carbon atom, that molecule, and heterocyclic are those chemical compound that contain ring or rings of more than rings of different atom than carbon, like hydrogen, like oxygen, nitrogen and sulfur. Here is the example of homocyclic alicyclic compound. Alicyclic are those cyclic compound that contain carbon atom only, but the ring is non-aromatic. Aromatic means delocalization of electron that give more stability to a cyclic chemical compound. So here is the example. Homocyclic alicyclic compound. The cyclic compound contain non-aromatic ring or ring of carbon atom only. समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड कंटेन नॉन एरोमेटिक रिंग। चक्रीय यौगिक जिसमें एरोमेटिक नहीं होते हैं, एरोटोमाइजेशन नहीं होते हैं उसमें रिंग, और वो सिर्फ कार्बन एटम के बने होते हैं। इनका एग्जाम्पल में मोनोसाइक्लिक मतलब ऐसी संरचना जिसमें सिर्फ एक क्लोज्ड रिंग हो। तो इसमें एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन देखें, अगर यहाँ से हम अगर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ये हो जाता है 1 2 3 4 ब्यूटेन का, या फिर यूँ कह लें इसको पूरा मिटा देंगे तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन। प्रोपेन, ये एलिफेटिक प्रोपेन, इसको इस तरह से जोड़ देंगे कि ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्लोज रिंग है इसलिए साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन्स हैं इसलिए साइक्लोप्रोपेन। हियर द एग्जांपल CH2 CH2 CH2, ये साइक्लोप्रोपेन है। उसी तरह से एक कार्बन एटम और बढ़ जाए, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लिक कंपाउंड में जो मिनिमम कार्बन एटम का साइकिल बन सकता है वो है 3 कार्बन का। 3 से नीचे 2 कार्बन का साइकिल नहीं बन सकता है, क्योंकि 2 कार्बन जो है एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और 3 कार्बन एक साइकिल या क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए। तो साइक्लोप्रोपेन ये सीरीज का फर्स्ट केमिकल होगा। नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन, ये सब सैचुरेटेड है, मीन्स देयर इज नो डबल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इसी तरह से जो है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन, साइक्लोअनडेकेन, साइक्लोडोडेकेन, साइक्लोट्राइडेकेन, साइक्लोटेट्राडेकेन, साइक्लोपेंटाडेकेन, इस तरह से जो है सीरीज साइक्लिक में स्ट्रक्चर में बन सकते हैं। ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड हैं, देयर इज नो डबल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। हियर आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लोप्रोपीन, देयर इज वन डबल बॉन्ड इन दिस साइक्लोप्रोपीन, इसमें एक डबल बॉन्ड है इसलिए साइक्लोप्रोपीन। ये साइक्लोब्यूटीन, एक डबल बॉन्ड है, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोनोनिन, साइक्लोडेक्नीन, इस तरह से डबल बॉन्ड उसमें आने से ये डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए इस केस में। एलिसाइक्लिक में नॉन एरोमेटिक केमिकल कंपाउंड्स आते हैं, डबल बॉन्ड हैं तो वो डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं और साइक्लिक बना लेते हैं, एरोमेटिक बना लेंगे, तो वो इसमें न आकर के दूसरे केमिकल कंपाउंड क्लासिफिकेशन में आएंगे, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स में। तो ये होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक के ये सब एग्जाम्पल जो है वो मोनोसाइक्लिक, मतलब क्लोज रिंग सिर्फ एक रहेंगे। पॉलीसाइक्लिक, क्लोज रिंग अगर ढेर सारे रहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अगर क्लोज रिंग रहते हैं तो उनको हम पॉलीसाइक्लिक कहेंगे। पॉलीसाइक्लिक के एग्जाम्पल हैं इधर पाइरीन, इसमें 4 साइकिल हैं। साइक्लोहेक्सेन, इसमें 4 हैं, एक साइक्लोहेक्सेन, 2 3 और ये 4।
नैप्थलीन, ये नैप्थलीन है 2 रिंग वाले। एंथ्रासीन 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है। टेट्रासीन में 4 साइक्लोहेक्सेन रिंग हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया सैचुरेटेड पॉलीसाइक्लिक के। मेरे एग्जाम्पल ये सैचुरेटेड पॉलीसाइक्लिक के, इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। और ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि सारे रिंग में जो एटम्स हैं वो सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए ये हो गया सैचुरेटेड पॉलीसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड पॉलीसाइक्लिक का एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हम बहुत सुनते हैं, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है और ये हार्ट डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये बॉडी के लिए ज़रूरी होता है सेल के डेवलपमेंट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये एग्जाम्पल है एक पॉलीसाइक्लिक 1 2 3 4, इसमें 4 क्लोज रिंग हैं। होमोसाइक्लिक, ये जो चारों रिंग हैं सिर्फ कार्बन के हैं, कोई और दूसरा उसमें एटम नहीं है। एलिसाइक्लिक, इसमें कहीं पे भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो ये एलिसाइक्लिक हुआ, नॉन एरोमेटिक रिंग है। अनसैचुरेटेड, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। तो ये सभी का एग्जाम्पल ये अकेला कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ये साइक्लोहेक्सीन रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ये साइक्लोपेंटेन रिंग है, उसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूशंस हैं मिथाइल मिथाइल मिथाइल। इस तरह का बॉन्ड अगर इस तरह से सॉलिड बॉन्ड दिखाता है तो इसका मतलब ये प्लेन के ऊपर है। इस तरह से डॉटेड लाइन से अगर बॉन्ड दिखा रहा है मतलब प्लेन के नीचे है, बाकी सारे केमिकल कंपाउंड प्लेन पे हैं। इस तरह से इसको दर्शाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल हो गया पॉलीसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक कंपाउंड के। नेक्स्ट, homocyclic aromatic ring. Aromatic rings are those that contain a benzene ring, which means there is a alternate single and double bond. Such compounds have sweet smell, that's why they are called as aromatic. Generally, aromatic word derived from aroma, a Greek word which means sweet smell. Aromatic ring may be of two types, benzenoid or non-benzenoid. Benzenoid generally contains 6 carbon compound, make a hexagonal ring that have aromatic smell or aromatic characters. Here we can see the homocyclic aromatic compounds. These compound consists of at least one benzene ring. होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग होता क्या है? इज अ 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक रिंग। बेंजीन रिंग एक 6 कार्बन का एक रिंग होता है दैट हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। दीज कंपाउंड हैज सम फ्रेगनेंट ऑर्डर एंड हेंस नेम्ड एरोमेटिक। ऐसे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्मेल थोड़ी अच्छी होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक कहा जाता है। अब एरोमेटिक रिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस ऑल्सो कॉल्ड बेंजीनॉइड एरोमेटिक। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, एंड दिस 6 कार्बन एटम्स हैव alternate single and double bond. Suppose this is single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Here single and double bonds are alternate. This is the definition of benzene. Means aromatic compound have benzene ring, means a benzene ring 6 carbon compound having alternate single and double bond. अगर यहाँ पे हम देखें एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक रिंग वो होते हैं जो 6 कार्बन के तत्वों से बना होता है और इसमें एक बार सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल,
एक ही अंतराल पे सिंगल और डबल बॉन्ड आते हैं। तो ये होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन इसमें एटम है, और ये मोनोसाइक्लिक सिर्फ सिंगल रिंग वाले हैं। तो एग्जांपल बेंजीन, टोलुइन, ऑर्थो मेटा पैरा ज़ाइलीन। मीन्स अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो इस पोजीशन को ऑर्थो, इस पोजीशन को मेटा और इस पोजीशन को पैरा कहेंगे। ये मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे है तो ऑर्थो ज़ाइलीन, ये मिथाइल ग्रुप अगर इस पोजीशन पे है तो मेटाज़ाइलीन, ये मिथाइल अगर इस पोजीशन पे है तो पैराज़ाइलीन। अब इधर पे है तो ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरह से इसको नाम दिया जाता है। ये हो गए मोनोसाइक्लिक। इधर है पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में इंडीन, 2 साइक्लिक रिंग है, हेक्सिन और ये हेक्सीन और पेंटीन। इसको दूसरा में हेक्सट्राइन, पेंट 1 इन। इसमें बाइफिनाइल, 2 साइक्लिक ग्रुप है बाइफिनाइल। तो ये हो गए सब बेंजीनॉइड एरोमेटिक रिंग। नीचे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक रिंग में ट्रोपोलिन, ये ट्रोपोलिन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मेंबर्ड रिंग है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसमें एरोमेटिसिटी इस तरह से आएगा कि ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ आने पे ये फिर इधर आ जाएगा, ये फिर इधर, ये इधर, इस तरह से जो है इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है एजोलीन। इसमें ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। दीज आर नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक रिंग्स। Here the example are some heterocyclic compound containing oxygen, nitrogen and sulfur, both monocyclic and polycyclic. First, alicyclic means non-aromatic heterocyclic compounds. Alicyclic heterocyclic compound ethylene oxide, also known as oxirane. Here 2 carbon atom 1 oxygen in cycle. Ethylenimine, aziridine, 2 carbon compound 1 nitrogen. Trimethylene oxide, also known as oxetane, 1 2 3 methyl group is there, a carbon is there, therefore trimethylene oxide, oxygen is there, oxetane. Tetrahydrofuran, 4 carbon atom is there, 1 oxygen, so tetrahydrofuran. Piperidine, nitrogen is there, that's why piperidine. So all of this, and then dioxane, 2 oxygen molecules, more than 1 heteroatom in cyclic compound, heterocyclic compound. These are the monocyclic. Here the polycyclic example, tropine, oxinolizidine and pyrrolizidine. These are the polycyclic and heterocyclic compound. 1 nitrogen, nitrogen is the heteroatom in such heterocyclic compound. Here are some example of heterocyclic aromatic compound. Let's see the example. Such type of aromatic heterocyclic compound resemble benzene and other aromatic compounds. For example, furan, oxygen is there, pyridine, nitrogen is there, pyrimidine, 2 nitrogen molecules, pyridine, 4 nitrogen molecule with 2 rings, purine, 2 nitrogen molecule, 2 rings. Here quinoline, indoline. These are heterocyclic aromatic compound with single cycle. Here heterocyclic aromatic compound with 2 closed rings. These are the polycyclic. It comes under monocyclic, monoheterocyclic, and these are polyheterocyclic compounds.